Good morning class, this is Praveen Mishra, welcomes in science class. In this class, I am going to start the solar system, your chapter 13. In this chapter, I am going to discuss the solar system, moons and satellites, star, rotation and revolution, seasons, why seasons occurs, and the keywords of this chapter. So now I am going to start the chapter. Solar system, the sun, the 8 planets, their moons and dwarf planet form the solar system. हमारा जो sun और जो planets, what are planets? The object that is revolve around the sun. ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि सन के चारों ओर मूव करते हैं उनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं. तो नंबर ऑफ प्लैनेट्स इज 8. दे आर मून्स. एंड व्हाट इज मून्स? द ऑब्जेक्ट दैट इज रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड मून्स. द डार्क प्लैनेट्स, बेटा डार्क प्लैनेट्स क्या होते हैं? डार्क प्लैनेट्स मीन्स होते तो ये प्लैनेट्स ही हैं बट दे आर स्मॉल इन साइज. ओके, सो द सन, द 8 planets, moons and the dwarf planet form the solar system. The 8 planets that revolve around the sun in order of the increasing distance from the sun. मतलब increasing distance from the sun मतलब sun से उनका जो बढ़ता हुआ जो डिस्टेंस है ना उसमें. तो सबसे पहले आएगा मरकरी, then Venus, then Earth, then Mars, then Jupiter, then Saturn, then Uranus and then Neptune. So it is indicating that Mercury is the planet that is near to the sun and Neptune is very far away from the sun. Now I am going to discuss what is sun. So as you all know, sun provides us heat energy and light energy. The sun is a huge ball of fire that gives us heat and light. बेटा sun क्या है? sun एक बहुत बड़ी बॉल ऑफ फायर है, ठीक है, और जो कि हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट. and it is the center of our solar system and sun is also the center of our solar system. One more important thing that I am going to discuss, the all planets, जितने भी हमारे planets हैं, they are all revolve around the sun. So now first of all Mercury. तो Mercury is the closest planet to the sun. ये sun के सबसे पास वाला planet है and it is also the smallest planet in the solar system. और हमारे solar system में जितने भी planets हैं, number of planets is 8, तो उनमें से ये सबसे छोटा planet है. Okay, now Venus. It is the second planet in the solar system. ये second number पे आता है and it is the hottest planet of all. और Venus जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट मतलब सबसे गर्म जो है वो कौन सा है? सबसे हॉट जो है वो कौन सा है? वीनस. वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. मरकरी इज द क्लोजेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ओके, नाउ थर्ड अर्थ. बच्चों यू आर ऑल नो वी आर लिविंग ऑन अर्थ. दिस इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम and it is also called blue planet. So what is the reason why earth is called the blue planet? Because it's almost 70% of its surface is covered with water. इसका जो more than half part जो है वो about 70% parts जो है वो water से cover है. अगर आप इसे आसमान से देखें मतलब अर्थ के बाहर से देखें तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा? दिस इज़ ब्लू इन कलर. इट्स अपीयर ब्लू व्हेन वी सीन फ्रॉम द स्पेस. अगर हम इसे स्पेस से देखें तो ये ब्लू दिखाई पड़ेगा. इट इज़ द ओनली प्लैनेट्स वेयर लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट. ठीक है, और ऐसा माना जाता है बेटा कि हमारी केवल ये ही हमारी अर्थ ही केवल एक ऐसा प्लैनेट्स है जहाँ पर लाइफ है. Now Mars is the fourth planet of the solar system. It is also called the red planet. We call the soil and rocks of the planets are red. It is the red planet. बेटा ये ना red planet है. और क्यों है? Because it's contain the ferrous
थिंग्स, ठीक है। इसमें जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, इट इज व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, तो इट्स कन्वर्टेड, इट्स फॉर्म रस। सो बिल्कुल वही है कि द सॉइल एंड रॉक्स ऑफ दिस प्लैनेट आर रेड। इसकी जो सॉइल्स हैं उसमें आयरन ज़्यादा मिलता है, और आयरन जब वाटर, यू नो कि मास हैज़ वाटर, तो जब उसमें आपको पता है मास में पानी, तो मास में जब पानी है तो ये आयरन कंटेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करने पर क्या फॉर्म कर लेते हैं, रस्ट बना देते हैं, एंड दैट अपीयर्स मास red in color. Okay, it is the only planet that is similar to Earth, and scientists believe that is the only planet beside Earth where life may exist. ये अर्थ, मार्स ही बेटा केवल एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारी अर्थ के बिल्कुल अर्थ से सिमिलर है, और साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर अर्थ के अलावा कहीं पे लाइफ हो सकती है तो वो मार्स पे हो सकती है। Now Jupiter, it is the fifth and the largest planet of the solar system. Jupiter is the largest planet of the solar system. सबसे बड़ा जो planet है वो है Jupiter. Jupiter is spin very fast. ये घूमता बहुत तेज है, pulling the clouds surrounding it to form strip patterns, and it is also form strip pattern. This is why we see a strip pattern on Jupiter when we look carefully. अगर हम लोग ध्यान से देखें जुपिटर की चारों तरफ, तो वहाँ पर हम लोगों को एक स्ट्रिप पैटर्न्स नज़र आएगा। Now Saturn, it is also known as a planet with ring because it appears to have several rings around its middle. अब मेरा जो हमारा सैटर्न्स होता है इसको हम प्लैनेट विद रिंग्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत सारी रिंग्स जो हैं वो होती हैं। नाउ यूरेनस एंड नेपच्यून, दे आर द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। सन से सबसे ज़्यादा दूर है में जो प्लैनेट्स होते हैं, दे आर यूरेनस एंड नेपच्यून एंड आर ऑल द आउटर प्लैनेट। जो बाहर जो फर्स्ट 4 planets of the solar system is called inner planets, and the last 4 planets is called outer planets. Till July 2006, it was accepted that the sun has a family of 9 planets. Till July 2006, जुलाई 2006 तक ये समझा जाता था कि सन की फैमिली में 9 planets हैं। However, on August 24, 2006, the International Astronomical Union redefined a planet. Our solar system has only 8 planets. इसके बाद अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियंस हैं. दिस इज़ द यूनियन दैट इज़ डिसाइडेड द लैंग्वेज ऑफ और द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स. तो इट इज़ डिसाइडेड दैट द सोलर सिस्टम हैज़ ओनली 8 प्लैनेट्स. पहले 9 थे, अब कितने हो गए? 8. Pluto, which was earlier a planet, is now a dwarf planet along with Ceres and Xena. पहले प्लूटो भी हमारे साथ में ही हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट था, बट नाउ इट इज़ अ डॉफ प्लैनेट. डॉफ प्लैनेट मीन्स दीज प्लैनेट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. ओके, along with Ceres and okay. Now stars. If we look at the night sky, we see lot of shining twinkling object called stars. What are these stars made up of? बट अगर हम रात में आसमान की तरफ देखें तो हम लोगों को चमकती हुई कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ेंगे, एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स. ट्विंकल करते हुए ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेंगे. What are these stars made up of? So first of all, what is stars? Stars are growing ball of gases that spread out heat and light in space. The same as sun, stars are the glowing ball of gases. These are the ball of that gives us heat and light. They are actually huge, but because they are so far away, so they look like teeny pinpoint of light to us.
वैसे तो ये बहुत बड़े हैं, ज़्यादातर स्टार्स जो हैं वो सन से भी ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन ये हम लोगों को बहुत छोटे इस वजह से दिखाई पड़ते हैं बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर हैं, इस वजह से ये बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। और इनकी जो डिस्टेंस होती है वो मीटर या किलोमीटर में नहीं होती, इनको इनकी मीज़रमेंट करने के लिए, इसकी लेंथ का मीज़रमेंट करने के लिए एक स्पेशल यूनिट है, उसका नाम है लाइट ईयर। ओके, वो इन सीनियर क्लास द टीचर विल डिस्कस फॉर द लाइट ईयर यूनिट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज moon and satellites. An object that revolve around a planet in an orbit is called a satellite. ऐसे ऑब्जेक्ट जो सन के चारों, जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको हम सैटेलाइट्स कहते हैं। ऑलमोस्ट एवरी प्लैनेट हैज़ अ सैटेलाइट्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट। ज़्यादातर प्लैनेट्स के पास अपने खुद के सैटेलाइट्स हैं, कुछ के पास नहीं भी हैं। The moon is the only natural satellite of the earth. You know very well, moon is the natural satellite, only natural satellite. Lots of satellites are of two types: natural satellites and artificial or man-made satellites. Moon does not have an atmosphere to protect it from extreme heat or cold. Moon के अंदर अपना कोई एटमॉस्फियर नहीं है जिससे कि ये एक्सट्रीम कोल्ड और हीट को प्रोटेक्ट कर सके। बेटा एटमॉस्फेयर क्या करता है? एटमॉस्फेयर हेल्प टू रिटेन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, टेम्परेचर को ना ज़्यादा कम होने देता है और ना ज़्यादा बढ़ने देता है। सो द टेम्परेचर ऑफ द मून कैन बी हाई एट 100 डिग्री सेल्सियस एट नून एंड एज लो एज -173 डिग्री एट नाइट। तो मून का जो टेम्परेचर है वो नून के समय, दोपहर के समय 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर एंड लो एज -173, और नाइट में इतना कम हो जाता है, -170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मतलब एंड द बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। एंड व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। अगर वाटर में थोड़ी सी इम्प्यूरिटीज़ है तो ये थोड़ा सा और कम हो जाता है। द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। यू ऑल नो द मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। इट इज़ अ नॉन लुमिनियस सोर्स ऑफ एनर्जी। इट्स शाइन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट दैट फॉल ऑन इट्स सरफेस। जो भी लाइट की जो रेज उस पर फॉर्म हो, उस पर पड़ती हैं, दैट लाइट रेज मून रिफ्लेक्ट टू द अर्थ। ओके, सो मून इज तो द क्वेश्चन नाउ, वन क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क, moon is a luminous source or non-luminous source of energy? Give me answer. So at last I am just going to discuss today. I have already discussed what is solar system, what is satellites, what is moon, what is star. If you have any doubt, feel free to ask me. Okay, so have a good day, students.